Students, now we'll talk about the dispersion, and in this case we have a prism, and this white light enters into it. So we see some phenomena happens that the refractive index of the material depends on the, after observing the phenomena कि ये white light जो है वो कई सारे colors में split हो जा रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? There was a lot of the debate regarding this issue, this problem, and बहुत सारे उसमें ऐसे इस फिनोमेना को कई तरीके से देखा जा रहा था. कई लोग ये सोचते थे कि ये प्रिज्म जो है, व्हाइट लाइट इज नॉट हैविंग सम, ऐसा सोचा जा रहा था कि व्हाइट लाइट में तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइट तो व्हाइट ही रहेगी, इसमें कलर्स कैसे आए, कलर्स क्यों आए होंगे, ऐसा सोचा जा रहा था कि प्रिज्म के कारण, प्रिज्म के मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण आपके ये कलर्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ डिबेट चलता था. लेकिन फाइनली वन न्यूटन came and he showed one experiment. After this I will tell you, and he concluded that yes, light is having some different kind of properties. It has contained a lot different wavelengths of the different colors, and when we combine all these 7 colors, ये जो different colors हैं, they have the different wavelengths as well, and if these light combines together, it gives a white light to us. ठीक है, तो हम अभी इसका एक कंपनसेशन बताएंगे कि कैसा होता है, उसको आप समझ पाओगे न्यूटन ने कैसे आंसर दिया, इसका पूरा एम्बिग्यूटी जो थी उसको हटा दिया. तो एक सबसे पहले ये समझिए, उन्होंने आफ्टर सो मच ऑफ द डिस्कशंस दे केम टू द कंक्लूजन, यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिज्म दैट इज गिविंग यू डिफरेंट कलर्स. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वेवलेंथ जो है इस लाइट के, इट हैज कंटेन अ लॉट ऑफ द डिफरेंट कलर्स और द डिफरेंट वेवलेंथ. सो द प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेवलेंथ. तो मतलब कि लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स को कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है. किसका? प्रिज्म का. उसकी वजह से आपको ये डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं. कुछ लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, कुछ कम रिफ्रैक्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो देखिए कैसा क्या होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. द वाइडली यूज्ड मटेरियल्स इन अ ग्लास प्रिज्म, है ना. तो जनरली ये प्रिज्म किसका बना होता है? क्राउन ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज Si2, है ना. So the variation of n with the wavelength. So this was a conclusion. This was an answer of the issue that this refractive index is changing with the change of the wavelength, and more the wavelength, यदि देखिए इसका जो wavelength ज्यादा है, इस केस में रेड का, देखिए रेड का, है ना. तो इस केस में आपका रेड का wavelength सबसे ज्यादा है 6.3, है ना. This is in nanometer. This is in nanometer. This is 656.3 nanometer, and if you see the refractive index of it, 1.456, something very less as compared to other glasses. आप देख सकते हो जो other colors, violet, blue, yellow, red, इन सब बाकी के आप देखिए violet जो जिनका जो wavelength है वो ज्यादा, जिनकी wavelength जो है वो कम है as compared to red की wavelength देखिए ज्यादा 656.3 nanometer as compared to these colors, it is greater, so it will have lesser refractive index. मतलब higher the wavelength, lesser will be the refractive index. मतलब lambda is inversely proportional to this refractive index. Higher will be the wavelength, lower will be the refractive index. Clear? तो after ये सब स्टडीज करने के बाद डिफरेंट ग्लासेस के लिए, डिफरेंट फ्यूज क्वार्ट्ज के लिए, क्राउन ग्लास के लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए देखा गया. So there were the different observations and finally concluded that yes, white light have a different combination of the colors. It has a wide range of spectrum. This will give this red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, and which have different wavelengths, and that's why they are showing the different refractive index for the different wavelengths. So higher will be the wavelength, lower will be the refractive index. Lower will be the wavelength, higher will be the refractive index. Clear? So in this case, यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस केस का रेड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा, है ना. यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम हो गया रेड के लिए, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा
that will be less. Blue has a wavelength of 486.1 nanometer and having the fused quartz, हमने की बात कर रहे हैं 1.463. Other classes can be there. So you can compare the differences there in the refractive index. And this point 0.01 something is a very large difference. It's not very small difference. समझ रहे हो? क्योंकि लाइट के टर्म्स में आप बात करते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक बात समझ पा रहे हो कि yes, this light has different wavelengths and each and every wavelength having different refractive index. Clear? तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू रेड ज्यादा होगा, ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. सो हायर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द रिफ्रैक्ट, ज्यादा तेजी से रिफ्रैक्ट होगा, है ना? तो आप देख पा रहे हो ब्लू ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है. तो ऐसा क्यों हुआ है? ये स्पेक्ट्रम हमको क्यों मिल रहा है इतना सारा? बिकॉज क्योंकि इन सभी की जो कलर्स हैं दे कंटेन डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट वेवलेंथ causes different refractive indexes. Clear? That's why this happens. Clear? Okay. Let me tell you one more interesting thing, that after having this experiment and after these values, we have come to the conclusion and we have plotted one graph n versus lambda. As you see that as lambda increases, this is what is happening. As lambda आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे n की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है. n की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज. द हायर विल बी द lambda, लोअर विल बी द refractive index. Now let's talk about dispersion compensation. So now this is compensating for the dispersion effects due to the particular optical component or the medium. What does it mean? If we have this first prism and this is inverted prism, इसका just reverse. So if we have this N1 prism, we have seen the case. We have we get a spectrum of light, है ना? The waveguide जिसको बोलते हैं short form में. तो लेकिन यदि हम देखना चाहें कि यदि इसी का एक मतलब इसको कंपेंसेट करने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि व्हाइट लाइट हमने दिया था तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलना चाहिए? व्हाइट लाइट मिलना चाहिए. यदि हम इसी को क्या कर दें, इसी का एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दें इसके पास, न्यूटन का आइडिया था ये, तो उन्होंने इसका इन्वर्टेड प्रिज्म रखा और उन्होंने फाइनली देखा कि ये व्हाइट लाइट क्या हो रही थी, फिर से उनको मिल रही थी बिकॉज ऑफ दिस N2 प्रिज्म एंड इन्वर्टेड प्रिज्म. सो दिस that is called the compensating prism. All right, the compensating for the dispersion effects to the particular optical component or the medium. इस particular optical medium के कारण क्या हो गया, वो ये जो spectrum of light था वो क्या हो गया, shrink हो गया. We are that is giving a white light to us. Let us see that how does it happen. By choosing second prism of appropriate size and the refractive index, it is possible to compensate for the dispersion of the first prism. जो इस first prism के कारण dispersion हुआ था, डिस्पर्शन मैंने आपको समझा दिया प्रिज्म का, तो उसे इस फर्स्ट प्रिज्म का जो डिस्पर्शन हुआ उसको कंपेंसेट कौन करेगा? ये दूसरा प्रिज्म क्या करेगा? उसको कंपेंसेट करेगा. जैसा पहला केस था वैसे, है ना? यहाँ पे जैसी लाइट थी वैसी लाइट हमको यहाँ पे फाइनली दे देगा. ठीक है, तो इट्स योर ड्यूटी टू मोर रिगरस स्टडी दिस, है ना? मोर रिगरसली यू हैव टू स्टडी दिस. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ फेनोमेना. आप नेचर में कहाँ देखते हो इस टाइप के फेनोमेना? जैसा प्रिज्म में आप देख रहे हो, स्पेक्ट्रम आपको 7 कलर्स मिल रहे थे. आपको कहाँ लाइफ में आप कहाँ देख पा रहे हो इसको? आपने देखा होगा कि जब बरसात होती, मतलब कि जब एक साइड में सन, कभी कभी कंडीशन से क्रिएट होती है कि एक साइड में आपका सन दिखता रहता है लेकिन एक साइड आपकी बरसात होने लगती है कभी कभी. फिर आपने देखा होगा कि वहां पे एक रेनबो क्रिएट होता है ना? सतरंगी रेनबो, है ना? तो हाउ डज इट हैपन? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना कि जब अब वहां पे कौन से देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स लिया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे सनलाइट को इसमें फॉल करा रहा हूँ. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 3 टाइप के फिनोमेना होते हैं इसमें. कौन से? एक तो डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है. ठीक है, तो ना, तो दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओवर देयर. सो लेट मी टेल यू, इफ व्हेन दिस व्हाइट लाइट, इट इज व्हाइट लाइट, है ना? व्हाइट लाइट आपकी है और ये किसी वाटर ड्रॉपलेट में जा रही है. ठीक है, दिस व्हाइट लाइट इज फॉलिंग ऑन द ड्रॉपलेट. सो व्हाट इट हैपेंस, सो बिकॉज इट इज चेंजिंग मीडियम, दिस इज
air medium, this is vacuum medium, and this is your water medium. Water medium has a refractive index 1.33, so it will get bend, है ना, it will bend towards the normal. Clear? So it bends towards the normal. So then after that, after striking to the inner surface of the, इस वाटर के इनर सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट भी होगा. अब यहाँ का रेड का केस देखिए आप. रेड का जो है, मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो समझाया था कि जब रेड का वेवलेंथ जितना, क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, है ना. इस रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, ये कम बेंड होगा. और जो ये वायलेट या फिर ब्लू लो, है ना, तो ब्लू के केस में वो उसका जो वेवलेंथ है वो कम है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बेंड होता है. ठीक है, तो वेवलेंथ का रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ये दिमाग में रखिए आप बात. तो यहाँ पे जो इंटरनल लेयर्स हैं इस वाटर की सरफेस की, सो बिकॉज ऑफ दैट इफ यदि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, है ना, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन यू विल हैव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना. तो ये यहाँ पे इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. क्लियर. अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे आने के बाद इस सरफेस के बाद क्या होगा, दिस चेंजिंग द मीडियम n2 से दिस n1 n2 n2 से n1 में आ रहा है फिर से, तो फिर से क्या होगा, वो फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होएगा. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेड के केस में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यदि यहाँ पे अब हमारी आंख है यहाँ पे सपोज करिए, ठीक है, ये वाली आंख है यहाँ पे, यहाँ से हम देख रहे हैं फिनोमेना को, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा किसके केस में, रेड के केस में, दैट विल बी 42 डिग्री एंड दिस विल बी 40 डिग्री फॉर द वायलेट. ठीक है, देयर आर डिफरेंस. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन द ड्रॉप. और आप देखोगे फाइनली आपको इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा, है ना, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेक्ट्रम. और बाकी की जो लाइट रहती है ना, वेव क्योर होता है ना, वेव क्योर, है ना, तो आपने रेड मिल गया, वायलेट मिल गया, बीच की लाइट किसके बीच में रहेगी, किसके एंगल के बीच में रहेगी, 40 डिग्री से 42 के बीच में जितने भी लाइट रहेंगी वो रहेगी. ठीक है, यदि ब्लू लो, वायलेट लो, डिफरेंट एंगल होएगा. यदि ब्लू आप लेते हो तो इस केस में आपका ये इस तरीके का एंगल वन फॉर्मेशन हो रहा है. तो बाकी की जो रेडिएशंस है, बाकी के जो कलर्स हैं, इनके रेंज के बीच में आएंगे, बाकी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये बात ध्यान रखिए कि तो हमने एक मोटा मोटा तौर पे देखना चाहा कि कितना एंगल डिफरेंस होता है इसमें आपका. देखिए तो इसमें आपका जो रेड का है 42 डिग्री, क्योंकि ये दिस इज लेस रिफ्रैक्टेड एंड दिस वायलेट इज मोर रिफ्रैक्टेड, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स. सो आई से जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है देखिए आप इस तरीके से. तो there's something showing that this kind of how this spectrum was created because of the dispersion, diffraction and total internal reflection. So now we have other cases as well. When we have this red drop and sunlight is falling on it, so we can have a multiple total internal reflection at a time. जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है. When incident light is greater than the critical angle, तो यहाँ पे यहाँ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, फिर से यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्ट होएगा. तो रिफ्रैक्ट होएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला रेड वाला कम रिफ्रैक्ट होगा और ये वायलेट वाला ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा, बिकॉज इट हैज लोअर वेवलेंथ, इट हैज अ लार्जर वेवलेंथ. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि जब डबल रिफ्रैक्शन होता है तो आप उस केस में आप देखना आपको जो रेनबोज एक दूसरा रेनबो भी आपको दिखाई देता है ना, मतलब कि उसका इंटेंसिटी कम होता है लेकिन आपको डबल आपको रेनबोज दिखेंगे उस केस में जब डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं. तो इन दोनों के बीच में, वायलेट और रेड के बीच में, बाकी की जो ये वायलेट और रेड के बीच में बाकी के जो कलर्स हैं, इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई करेंगे. क्लियर है? तो इस तरीके से आप रेनबोज को देख पा रहे हो. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ dispersion, that is dispersion, diffraction and total internal reflection. समझ आ रहा है? अब यहाँ पे स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग भी देखा जाए तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, किसी की स्मॉल साइज है, किसी की काफी लार्ज पार्टिकल्स है. तो जब वो रेडिएशन सन से आती है तो वहां पे डिपेंडिंग ऑन द साइज, है ना. अब जैसे
लोअर जो वेवलेंथ होती है, जो लोअर वेवलेंथ की, जैसे वायलेट हो गया इस रेंज की, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब लोअर वेवलेंथ की होती है, और रेड, ऑरेंज, येलो, दीज आर द लार्जर वेवलेंथ्स, है ना। सो जनरली आपने देखा होगा कि अपना जो स्काई वो ब्लू रहता है ना, देखा होगा जनरली स्काई क्यों ब्लू रहता है, बिकॉज दिस ब्लू हैज अ लोअर वेवलेंथ। और यदि सपोज करें ए इज अ पार्टिकल साइज, यदि साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, यदि ए जो है साइज है किसी भी पार्टिकल की एटमॉस्फेयर में बहुत लेस है, किससे, वेवलेंथ से बहुत लेस है, जो सन से लाइट रेज आ रही है उससे काफी लेस है, तो पार्टिकल साइज यदि लेस है तो क्या होगा, उस केस में रेले स्कैटरिंग का फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon लैम्डा की पावर 4। ठीक है, मतलब कि a इज, यदि a क्या है, लेस है, वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, ये वाला केस लगाओ, तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि यदि आपका पार्टिकल साइज बहुत क्या है, पार्टिकल साइज इज वेरी लेस, देन दिस इज डोमिनेंट, दिस लैम्डा इज डोमिनेंट इन दिस केस, तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो ज्यादा डोमिनेंट रहता है, बिकॉज द लेस पार्टिकल साइज। लेकिन यदि पार्टिकल साइज ज्यादा हो जाए, तो यदि ए जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा, देन व्हाट विल हैपन, जनरली रेन ड्रॉप्स रहते हैं, और भी आइस के छोटे छोटे जो है ना कई बार हो जाते हैं ठंडियों में, आपने देखा होगा, तो उस केस में क्या होगा, यदि पार्टिकल साइज आपका ज्यादा है किसी भी लैम्डा से, तो यहाँ पे रेले स्कैटरिंग फॉलो नहीं होता है, क्लियर है। तो आप इसलिए देखते होगे कि कहीं कहीं व्हाइट स्पॉट्स भी रहते हैं, है ना, क्योंकि उस रीजन में पर्टिकुलर क्या है कि वहां पे पार्टिकल साइज क्या है, ज्यादा है, समझ आ रहा है। इसलिए आपने स्काई में देखा होगा कुछ पोर्शंस क्या रहते हैं, व्हाइट टाइप के रहते हैं, व्हाइट रहते हैं, हर जगह ब्लू नहीं रहता, है ना, मैक्सिमम जगह ब्लू रहता है, बिकॉज ऑफ द लेस पार्टिकल, उस रीजन में जहां पे लेस पार्टिकल साइज है, वहां पर रेले स्कैटरिंग का फॉर्मूला यूज होता है, रेले स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, और यहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा है, वहां पे आपका क्या होता है कि आपका व्हाइट ही देखने को आपको मिलेगा, व्हाइट। अब जैसे सपोज करिए सुबह सुबह आप जब उठते हो या फिर शाम को जब सन सेट होता है, तो आपने देखा होगा एकदम जो सूर्य होता है एकदम लाल हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा, रीजन है भैया, हर चीज का रीजन होता है नेचर में, तो दैट इज रेड बिकॉज क्योंकि उस समय जो सन होता है काफी दूर होता है, तो वहां से आते जो वेवलेंथ आती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो वो क्या हो जाता है कि उतने दूर से आते समय सिर्फ जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वही हमको दिखाई देता है, बाकी कलर्स होते हैं, लेकिन अपने को कौन सा वेवलेंथ ज्यादा दिखाई देता है, रेड वाला, क्योंकि ज्यादा वो डेविएट नहीं होता, ज्यादा वो स्कैटर नहीं होता है, इसलिए बिकॉज मैंने यहाँ पे कई फिनोमेना समझाया कि वेवलेंथ जो है जो रेड की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल अदर्स, राइट, तो वो डेविएट नहीं होती, ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होती है ना, तो उसकी वजह से आपको सीधे आपको दिखाई दे जाता है ना, बिकॉज ऑफ लार्जर वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड सो फार अबाउट द रे ऑप्टिक्स, है ना। अब हम यहाँ पे ये जो टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला डिवाइस क्या आता है जो हमको गॉड ने गिफ्ट किया, दैट इज आई। आई जो है हमारे पास, दैट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। So eye is one of the finest organs which functions like an optical imaging device, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज इजीली देख पाते हो, चाहे वो हिल्स हो, चाहे वो कोई भी चीज आप देख पा रहे हो। इस पेन को मैं देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ आई, है ना, बिकॉज इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गॉड हैज गिफ्टेड अस, है ना। सो एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना व्हिच इज परसीव्ड अप्रॉक्सिमेटली बाय द ब्रेन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आई जो हमारे भगवान ने दिया हुआ है उसमें एक पार्ट होता है रेटिना, दिस पार्ट इज रेटिना वेयर इमेज इज फोकस्ड, है ना। जहाँ पे जो ये देखिए आप, इमेज जो होती है, एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है, इस रेटिना में, बिकॉज लाइट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना, क्लियर। तो अभी मैं इसका पूरा आपको आई का पूरा बताऊंगा सिस्टम कौन कैसे काम करता है, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या है, अब ऐसा भी तो नहीं है कि कोई भी चीज, अब जैसे सेलेस्टियल बॉडी है, अब जैसे अर्थ के बाहर सन, मतलब कि मून या फिर और भी बड़े बड़े, क्योंकि आप जो चीज देख पाते हो, सन क्या इतना छोटा है जो आप देख पाते हो क्या, ऐसा तो है नहीं। मून क्या इतना छोटा है जो आप देख पाते हो यहां से, नो, बट समवेयर something is there which causes the light coming and focusing on our retina। वहां से जो रेस आ रही है वो क्या कर रही है, वो फोकस्ड हो रही है इस रेटिना में, that's why you get a
इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि कैसे बड़े ऑब्जेक्ट को आप कैसे छोटे से पैमाने में आप देख पा रहे हो, है ना, बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ दिस रेटिना, है ना, फोकसिंग ऑफ द इमेज। सो लेट मी टेल यू, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। आप जैसे बहुत फार ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत सारी बॉडीज हैं वहां पे, लेकिन आप यहां से देख नहीं सकते, है ना। रीजन इज दैट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ आवर आई, है ना। और बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको भी आप नहीं देख पाते, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ आवर विजिबिलिटी, है ना। हमारी उतनी क्षमता नहीं है, हमारी आई उतनी फोकस्ड नहीं कर पा रही है बीम्स को, क्लियर। जो लाइट रेज वहां से आ रही है, जनरेट हो रही है, दैट इज आवर आई इज नॉट एबल टू फोकस ऑन द रेटिना, दैट्स व्हाई। सो बहुत फार ऑब्जेक्ट्स हो, बहुत ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज की यदि बात करें, या फिर स्मॉल जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे, है ना, नैनो पार्टिकल्स, उनको आप नहीं देख सकते नॉर्मली आईज से। तो उसके लिए हम क्या जनरली इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं, टेलीस्कोप्स यूज करते हैं। टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज को हमको देखना है तो हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज जनरली दीस इंस्ट्रूमेंट्स असिस्ट आवर ह्यूमन आई, है ना, इन व्यूइंग वेरी स्मॉल एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने में कौन सा अपने को मदद करता है, माइक्रोस्कोप्स, और टेलीस्कोप्स हमको फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मदद करता है। इसके लिए हम स्पेशल टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट हमको इतने स्मॉल छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है वो चीज बता सकता है, क्लियर। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो सबसे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए यहाँ पे कि अब हमारे आईज की एक लिमिटेशन है और कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन, जो काफी एजड लोग होते हैं, उनको पास की चीज नहीं दिखाई देती है ना, लेकिन दूर की चीजों को और अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन पास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वो दैट कम्स अंडर द फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है कि दूर की चीज दिखाई देती है लेकिन पास की चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन नियर साइटेडनेस में क्या होता है, आपको पास की चीज दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देगी, क्लियर। तो ऐसा ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन को ऐसा कौन सा लेंस लगा दिया जाए कि उसको पास की चीज दिखाई देने लगे, और उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सपोज करिए जो हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, आई एक इंस्ट्रूमेंट हमको गॉड ने गिफ्ट दिया, उसमें ऐसा क्या है कि जिसके कारण हमारी हमको इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की इजीली दिखाई दे रही। अब जैसे दिस इज ऑब्जेक्ट, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे कुछ रेज निकल रही हैं and that rays are coming to my eyes and forming an image on our retina, and that is because these rays are focusing on our retina, ठीक है। इससे जो रेज निकल रही हैं वो, मैंने एक चीज आपको पहले भी बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 रेज ही सफिशिएंट है, 2 रेज, ठीक है। तो इससे तो कई सारी रेज आ रही होगी, तो इफ वी कंसीडर एनी 2 रे, है ना, तो दिस because of this object some rays are coming and that is focusing on our retina। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारा जो आंख है जो दूर की भी चीज को और पास की चीज को भी इजीली देख पा रहा है। हमारे आंख के पास एक लेंस है दोस्तों, दैट इज आई लेंस। गॉड ने हमको गिफ्ट किया है एक लेंस ऑलरेडी आंख में, ठीक है। तो ये लेंस क्या है, ऐसा लेंस है कि इसे एक मसल्स, ये सिलेबरी मसल्स कनेक्टेड होती हैं, है ना। तो ये क्या करती हैं, इसके फोकस को एडजस्ट कर सकती हैं। जो नॉर्मल आप लेंस यूज करते हैं ना, दैट इज नॉट एबल टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, बट our this eye lens God has gifted us that can adjust its focal length। that's why आपको पास की चीज और दूर की चीज अच्छे से दिखाई दे जाती है। समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, because our eye lens is able to shrink and stretch accommodation। इसको फिनोमेना को बोलते हैं एकोमोडेशन, क्योंकि ये स्ट्रेच भी हो सकता है, इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एज पर द कंडीशन दीज सिलेबरी मसल्स क्या करती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच कर सकती हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आई के पास देखिए आपकी जो उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है यहाँ से, है ना,
और यहाँ पे आइरिस, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको, दिस कॉल्ड आइरिस। आइरिस जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, मसल से। तो इसको कितनी लाइट अंदर पास होने देना है, प्यूपिल, प्यूपिल क्या है कि ये डिस्टेंस होता है, एक होल होता है जहां से लाइट एंटर करती है लेंस में, आई लेंस में, क्लियर। तो यहाँ पे आइरिस जो है ये स्ट्रेच हो सकता है, मतलब कि कम ज्यादा हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन। तो यहाँ पे ये मसल से कनेक्टेड होता है इसलिए वो हो सकता है, मतलब कि कम ज्यादा एडजस्ट कर सकता है, ये समझ आ रहा है आपको। और यहाँ पे जो आपको लेंस दिख रहा है, तो इसकी लेंस को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है इनके सेलेरी मसल्स के पास। तो एज पर द रिक्वायरमेंट दे कैन स्ट्रेच और दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इमेज, यहाँ पे जब रेज जाती हैं तो फोकस किस पे होंगी, यदि रेटिना पे होंगी तो आपको इजीली विजिबल होगा, है ना। और यदि नहीं होती है तो उसकी हम केस बात करेंगे। यदि सपोज करिए कि जो रेस आ रही हैं ऑब्जेक्ट से वो कन्वर्ज नहीं हो पा रही है इस पॉइंट पे, इस रेटिना पे। रेटिना इज एन इमेज फिल्म जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, क्लियर है, तब तो आप देख पा रहे हो। लेकिन यदि सपोज करिए यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा तो क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे, आपको ब्लर हो जाएगी इमेज। तो उसके लिए हम बताएंगे कंडीशंस क्या होती हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा इजीली फोकस अचीव हो जाए किस पॉइंट पे, इस रेटिना पे, क्लियर। और यहाँ पे बहुत सारी ये नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे रहती हैं, तो जो हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती हैं और हमारा जो ब्रेन है उसको विजुअलाइज कर पाता है, उसको समझ पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। इमेज जो फोकस होती है रेटिना में, देखिए आपको मैंने अभी जो समझाया है उसी को इमेज से समझते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो एडजस्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना पास में है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर में, तो ये दूर के जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आ रही है दैट इज आल्सो फोकसिंग एट द पॉइंट आई ऑन द रेटिना, दिस इज रेटिना, ठीक है, रेड कलर से बना रहता है। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि हमारा जो आई का जो सिस्टम है कैसे डिफरेंट है लेंस बाकी की जो आर्टिफिशियल लेंस है। यहाँ पे वहां पे क्या होता था, आर्टिफिशियल लेंस में आपके इमेज की पोजीशन शिफ्ट होती थी, ऑब्जेक्ट यदि चेंज होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई लेंस में योर फोकस ऑफ द आई लेंस इज चेंजिंग। आर्टिफिशियल के केस में आपका फोकस फिक्स होता था किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। लेकिन हमारा ये जो आई लेंस है दैट इज एबल टू फोकस, दैट इज एबल टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना। वहां पे क्या होता था कि आपको दो रेस की जरूरत पड़ेगी, दो रेस को जरूरत पड़ेगी आपको एक इमेज फॉर्मेशन करने के लिए रेटिना में। लेकिन यहाँ पे आई लेंस हमारा जो है, आई भगवान ने जो हमको दिया उसको सिर्फ एक रे चाहिए, वो इजीली फॉर्मेशन करेगा एंगल, पर्टिकुलर एंगल विद आई विद द लेंस, है ना। तो फिर उसको हम बताएंगे कैसे वो एंगल फॉर्मेशन करता है और कैसे आप छोटी और बड़ी इमेज को कंपेयर कर पाते हो, क्लियर। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा आई लेंस है दैट इज एबल टू फोकस ऑन दिस पॉइंट आई, चाहे ऑब्जेक्ट पास में रखा हो चाहे यहाँ पे दूर में रखा हो, लेकिन इट इज एबल टू फोकस ऑन दिस आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने फोकस को एडजस्ट किया, अपने इसने फोकल लेंथ को क्या किया, एडजस्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है हमारे आई लेंस की, हमारे जो गॉड ने गिफ्ट किया है कि ये अपने फोकल लेंथ को इजीली एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं वो तो नहीं कर सकते, उनकी इमेज तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, आप इमेज यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, लेकिन आपकी इमेज यहां पे यहीं पे बनेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा, क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई होगी, लेकिन एक लिमिट होगी, सिंपल सी बात है। ये अब यहाँ नहीं कि हम यहाँ सेलेस्टियल बॉडी यहाँ पे आसमान के ऊपर रख दें, है ना, मतलब सेलेस्टियल बॉडी इस अर्थ के बाहर रख दें और बोले या वहां से रेज आ रही है और फोकस कर दे रेटिना पे, तो नहीं होगा। एक लिमिटेशन होगी, एक पर्टिकुलर रेंज होगी जहां तक कि रेज को वो क्या कर सकता है, इस पॉइंट आई पे एडजस्ट फोकस करा सकता है। मतलब कि इस फोकस को एडजस्ट करने की एक लिमिटेशन होगी, इस मसल की भी एक लिमिटेशन होगी कि कितना फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है, क्लियर बात। तो ऐसा मैंने कह रहा मतलब ये नहीं है कि कोई भी बॉडी जो स्पेस में है वहां से रेज आ रही है तो आपका जो आई है वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर ले और आई यहाँ पे रेटिना में आपका फोकस यहाँ पे रेटिना में आपका इमेज फॉर्मेशन कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज अ लिमिटेशन, वी विल टॉक अबाउट दैट, व्हाट इज दैट लिमिटेशन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। Just I have totally focused on our eye, which is a very important optical instrument. Students, now we will talk about the least distance of distinct vision or the near point or the far point of any lens. ठीक है? Basically here we are talking about totally focusing on the eye lens. All right.
So if we have a general picture of an eye like this is an eye lens, मतलब एक जनरल एक व्यू आई का इस तरीके से आपको दिखेगा, तो reduced eye इसको बोला जाता है। तो पियर इज द नियर पॉइंट, मीनिंग इसका मतलब ये क्या है कि नियर पॉइंट पियर का मतलब क्या है कि दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, है ना। इस रीजन, इस पॉइंट पर आपको एकदम क्लियर इमेज आपको मिलेगी, क्लियर। So this distance is called clear vision. So the eye lens can accommodate up to an object distance corresponding to PF. इस किसी भी आई लेंस की जो ये डिस्टिंक्ट विजन जो होगा, अब जैसे एल्डर एज की पॉपुलेशन है और एकदम कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उसके हर एक आईज की अलग अलग रेंज होती है ना। तो एक जो यंगर होगा उसकी आई के रेंज अलग होगी, एक एल्डर पॉपुलेशन जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन उसकी अलग, क्योंकि इट वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लियर। इट बिकॉज इट टोटली डिपेंडिंग ऑन द सिलियरी मसल्स, है ना, क्योंकि आई लेंस जो होता है आपका सिलियरी मसल्स से कनेक्टेड होता है। तो इसका जो एल्डर एज की पॉपुलेशन हो जाती है उस केस में सिलियरी मसल्स उतना तो ढंग से काम नहीं करती, और जो फोकल लेंथ जो चेंज होता है किसके कारण चेंज होता है, सिलियरी मसल। तो यदि वो ढंग से काम नहीं करती तो फोकल जो लेंथ है वो उतना शार्पली चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस केस में एल्डर एज की पॉपुलेशन आप देखते होंगे चश्मा लग जाता है उनके, यही रीजन है कि उनके सिलियरी जो मसल्स हैं दैट नॉट वर्क दैट मच वेल, ठीक है। तो यही रीजन, तो हर एक आई के लिए एक अपना एक रेंज हो सकता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन का। सो वी इफ सपोज दिस इज द एक नॉर्मल आई के लिए हम बात कर रहे हैं, तो दिस पीएन is the least distance of distinct vision and which has a distance of 25 centimeter. कितना 25 सेंटीमीटर, समझ आ गया। सो आई कैन अकोमोडेट अप टू एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू पीएन। इसके पीएन के अकॉर्डिंग आपका आई जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो सिमिलरली फॉर द फार पॉइंट रेफर्स टू द फर्देस्ट डिस्टेंस, दिस इज द नियर पॉइंट, ऑलराइट, दिस इज द नियर पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि ये लीस्ट आपकी डिस्टेंस होगी, क्लियर। उसके बाद कुछ भी हो सकती है ना। तो फार पॉइंट क्या हो सकता है, फार पॉइंट हो सकता है अब डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ आइज, है ना। अब जैसे एल्डर एज की पॉपुलेशन जो हो जाती है उसमें 200 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हो, है ना, 200 सेंटीमीटर के अंदर आप देख सकते हो। और जो एक जो 10 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, 9-10 साल के बच्चे जो होते हैं वो 10 से ऐसे 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर के आसपास देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जो नॉर्मल आईज की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक जो नॉर्मल हम कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision is 25 centimeter. So we can have a lot of situations if we have any problem related to the eye, that is called nearsightedness. That means you can it is also called myopia. So in that situation any person can see the objects very well if it is near to this, है ना। ये इस पॉइंट ये जो आपका पॉइंट है, देखिए किसी पीएफ जो लीस्ट नियर पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा है तो आप इसे नहीं देख पाओगे। लेकिन यदि उससे काफी दूर आपने रख दिया, इस पीएफ से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आपने दूर रख दिया, तो यहाँ पे इस कंडीशन क्या हो जाएगा, आप रेड वाले को देखिए, ये कन्वर्स कहां पे हो रहा है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस रेटिना, दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस रेटिना, नॉट ऑन द रेटिना, है ना। तो रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा है लेकिन उसके पहले फोकस हो रहा है, सो इट विल बी ब्लर्ड इमेज, है ना, फॉर द पर्सन। तो उसको उतनी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी, ब्लर दिखेगा उसको। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसमें इस केस में आपको पास की चीजें अच्छे से दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजें आपको इस पीएफ पॉइंट से दूर की चीजें आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा लेंस प्रोडक्ट कर देंगे, कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी हमको पता है कि इट डाइवर्जेस द रेज, है ना। तो ये डाइवर्ज कर देगा रेस को, और इस कुछ इस तरीके से हम डाइवर्ज कराएंगे कि ये जब ये इस लेंस आई लेंस से कन्वर्ज हो तो दैट फॉर्म्स एन इमेज एट आई, दिस पॉइंट इमेज आई एट दिस पॉइंट ऑन द रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इसको डाइवर्स करा देंगे यहाँ से थोड़ा सा एज पर द रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद हम इसको फोकस कराएंगे तो हमको इजिली आपको इमेज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा था, रेड वाला आप देखिए, है ना।
तो उसको हमको क्या कराना था, थोड़ा डाइवर्स कराना था और फिर उसके बाद फोकस कराना था। तो हमको इमेज मिल गई आपको रेटिना में, आपको क्लियर इमेज दिखने लगी, इसलिए है ना। तो बहुत अच्छा बात है इसमें, है ना, कि दूर की चीजें जब नहीं दिखाई दे रही है तो आप कौन सा लेंस यूज कर लो, कॉन्केव लेंस यूज कर लो, तो आपको इजिली आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और एक और कंडीशन क्रिएट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। इस केस में आपका दूर की चीजें आप अच्छे से देख पाते हो, एल्डर एज की पॉपुलेशन की बात करें तो, लेकिन वो पास की चीज अच्छे से यहाँ पे रख दो तो नहीं देख पाते, ब्लर उनको इमेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन है, हर चीज का एक रीजन होता है साइंस में, ठीक है। तो यदि इसका हम अभी डायग्राम बना के बात करते हैं, ठीक है, उससे आप और अच्छे समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज hypermetropia and farsightedness. In this case you can see far object image very clearly. जो आपका फार ऑफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, काफी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो काफी दूर का मतलब ये नहीं कि वो सेलेस्टिकल बॉडी है, ठीक है, मतलब कि एक रेंज होगी उसकी, ठीक है। एज पर द एल्डर पॉपुलेशन का मैंने अभी रेंज बताया था, उसके रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको अच्छे से दिखाई देगा, 2 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की रेंज में आपको पता है कि एल्डर एज पॉपुलेशन को क्लियरली दिखाई देता है, हाँ, 60 to 200 सेंटीमीटर उसके। लेकिन पहले की चीजें जैसे यदि इतनी पास रख के बोलोगे किताब पढ़ लो आप, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनको ब्लर लगेगा इमेज, ऐसा, हाँ। तो यहाँ पास की यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने सपोज एक बुक रख दिया है यहाँ पे, और उस अंकल या सर को बोलेंगे पढ़ के दिखाओ, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। रीजन ये है कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज आउट ऑफ दिस रेटिना, so that is not able to focus on this retina, that is behind this retina, so it will be just like a blur image for that person. So to come out of this situation, to focus this image eye on this retina, ये extra lens क्या करा रहा है, इसको focus करा रहा है ना, to some extent, so that he can see that image very clearly and the rays will focus on this point eye, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, eye आपका that was behind this retina, but now in this case after putting this lens you have got an image on the retina, so it is a better thing ना। तो इसीलिए एल्डर एज पॉपुलेशन को जनरली आपने देखा होगा चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? रीजन यही है कि वो पास की चीजें वो देख नहीं पाता है, उसको इमेज उसकी क्योंकि मैंने एक चीज बताया था आपको, ध्यान रखिएगा कि जो सेलेरी मसल्स होती हैं और जो फोकल लेंथ एडजस्टिंग पावर होता है आई का एल्डर एज पॉपुलेशन का बाद, वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज वो मसल्स अच्छे से काम नहीं करती, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है उनकी कुछ डिफरेंट काइंड का सिस्टम हो जाता है। मतलब कि 60 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर वो फार ऑब्जेक्ट को इजीली क्लियर देख पाते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज दे हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इमेज फॉर्मेशन इज जस्ट फार ऑफ इस रेटिना के बिहाइंड फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कम टू दिस कॉन्वेक्स मिरर एंड दैट्स व्हाई वी कैन इजीली गेट द इमेज पॉइंट ऑन दिस रेटिना। Students, now we will talk about the difference between this normal lens, artificial lens and our eye lens. क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस गॉड ने किया है, आप देखते हैं इसको। जो आप नॉर्मल जो लेंस बनाते हो जैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उनका एक अलग एक फीचर है उनका। आप देखिए कैसा, यदि आप उसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस केस में आपका फोकल लेंथ जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है उसके लिए एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए अलग फोकल लेंथ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनेगी, फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे f is constant and use lens formula to target to get v। यदि हमको v पता करना है कहाँ होगा तो we have to use lens formula we have derived so far। तो हमको यहाँ पे f तो फिक्स है हमारा, है ना, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको इमेज कहाँ पे मिली, क्लियर। लेकिन यहाँ आई लेंस का केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी सेलेरी मसल्स क्या करती हैं, अपने आईज को, अपने जो आई लेंस है उसको एडजस्ट कर सकती है, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं टू अ सम एक्सटेंट, नॉट अ वेरी मच एक्सटेंट बट टू अ सम एक्सटेंट इट कैन एडजस्ट एज पर द वर्किंग ऑफ द सेलेरी मसल्स इज कंसर्न्ड। यदि सेलेरी मसल्स अच्छे से काम कर रही है तो आपको एडजस्टेबल फोकल लेंथ होएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर इमेज वो बना के देगा। लेकिन जो जैसे जैसे आदमी की एज होती जाती है वो सेलेरी मसल्स क्या होती हैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, फोकल लेंथ उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आई साइट के। तो यहाँ पे लेकिन
बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे दो रेस यहाँ पे आपको रिक्वायर होती थी। आपका एक पैरेलल रे हो सकती थी या फिर this optic ray that is passing from the center, ठीक है। So this is a basic difference. It requires two rays to form the image, but it requires only one ray to determine the image of the object. Very important, ठीक है। तो यहाँ पे आप easily difference देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका focal length है इस आई लेंस के केस में it can adjust, ciliary muscles can adjust it, ठीक है। But in this case the focal length is fixed, you cannot adjust it। दो रे रिक्वायर होती है, इसमें एक रे रिक्वायर होती है, आप इजीली यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। यदि ऑब्जेक्ट आपका जितना बड़ा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल फॉर्मेशन इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी साइज की इमेज आप देख पा रहे हो। अब जैसे आप यहाँ से सपोज करिए बहुत बड़ी बड़ी हिली रीजन्स होते हैं, उनकी साइज कितनी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन आप इजीली अपने आईज में के अकॉर्डिंग उसको देख पाते हो, ठीक है। आप उसको आपकी जो उससे जो रेस आ रही हैं उस पर्टिकुलर हिल से आपके आईज में रेटिना में इजीली फोकस हो पाती है। दैट्स व्हाई यू कैन पिक्चराइज द इमेज। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो तो आपको आपकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आपका जैसे सपोज करिए हिल है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आई है, तो आप यदि इसके दूर हो, इससे दूर हो, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी लेस, तो आपको इमेज छोटी दिखाई देती है। आप दूर से देखते हो तो आपको इमेज छोटी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आप हिल कोई भी पर्वत पठार जो कुछ भी बोलना है, तो आप किसी भी पर्वत के पास यदि जाते हो, है ना, हिल के पास जाते हो, तो आपको साइज इमेज उसकी बड़ी दिखाई देने लगती है। और यदि आप देखे होगे कि जो ताजमहल है, ताजमहल जो पिक्चर्स में आप देखते हो या फिर है ना, दैट हैज स्मॉल इमेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप दूर से देखते हो, यदि ताजमहल को आप दूर से देखोगे तो आपको छोटा दिखेगा। रीजन ये है कि एंगल फॉर्मेशन जो होता है इस ऑप्टिक सेंटर से, है ना, इस रेटिना में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल फॉर्मेशन होता है दैट इज लेस। लेकिन जैसे आप ताजमहल के पास जाओगे और फिर देखोगे तो बड़ी बड़ी दिखेगी ना भाई। कैसा दिखेगा? अब जैसे आप पास गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, θ2 हो गया, ज्यादा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको इमेज वहां पे ज्यादा दिखती है। तो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस एंगल डिपेंडेंसी, कि आपकी इमेज छोटी दिखेगी, ज्यादा बड़ी दिखेगी, कम दिखेगी, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल θ1, θ2, θ3 so on. Students, now we'll see that यदि ऑब्जेक्ट आपका सेम है लेकिन आप यदि पोजीशंस चेंज करते हो, है ना, इस आई लेंस का जो ये ऑप्टिक सेंटर है, इससे भी आप देखो, आप यदि इस ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट की साइज तो सेम है लेकिन पोजीशंस डिफरेंट है। तो ये जो फॉर्मेशन करेगा, हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया कि आई लेंस के केस में फोकल लेंथ एडजस्ट होता है और आपका जो सिंगल रे विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज, सिंगल रे। लेकिन जो नॉर्मल लेंसेस होते हैं उनके केस में क्या होता है, दो रेज रिक्वायर्ड हो, एटलीस्ट टू रेज विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट हैज अ फोकल लेंथ फिक्स्ड, बट हियर वी हैव डिफरेंट केस, ऑलराइट। तो सम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस वो सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट द आई। यदि सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ अलग एंगल फॉर्मेशन होगा, ये ऑब्जेक्ट है इसका कुछ अलग एंगल फॉर्मेशन होगा, θ1, θ2, O1 के लिए θ1, O2 के लिए θ2, O3 के लिए θ3, देख रहे हो आप। तो यदि आपका पास ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाओगे आप तो आपको साइज तो बड़ी दिखेगी ना। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका एंगल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। दूर से अब देखोगे कोई चीज का एंगल फॉर्मेशन लेस होएगा, इसलिए आपको छोटा दिखाई देता है चीज, ठीक है। तो इसलिए चीजों के पास जाने और दूर जाने से इस एंगल का बहुत बड़ा रिलेशन है। इस एंगल डिटरमाइन करेगा कि आपको कैसा इमेज दिखेगा, क्लियर बात। अब जैसे मून को हम देखते हैं तो आपको छोटा से दिखाई देता है मून यहां से। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यू आर वेरी फार फ्रॉम दैट। कोई भी चीज बहुत पास हो और बहुत दूर हो तो उन दोनों केसेस में आपका जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो मून के केस में, सन के केस में आपका जो एंगल फॉर्मेशन होता है दैट इज वेरी लेस, दिस एंगल फॉर्मेशन इज वेरी लेस बिकॉज दैट इज वेरी फार। और बहुत पास यदि आप लाओगे ऑब्जेक्ट, कोई यदि बड़ी छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ पे यदि कोई छोटा सा माइक्रो पार्टिकल रख दो, छोटा सा, है ना, नैरो पार्टिकल रख दो, तो यहां से आपका जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस। तो उस केस में भी आपको क्या नहीं आपको दिखाई नहीं देगा बहुत, है ना, तो बिकॉज एंगल फॉर्मेशन इज लेस ओवर देयर। सो तो कोई भी चीज का रिलेशन आप इस एंगल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्लियर है। तो अभी हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एंगल सबटेंडेड विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि इस रेटिना में आपका साइज ऑफ इमेज क्या होगी, ठीक है, ये रेटिना है यहाँ पे। कैसे आप डिटरमाइन करोगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पर ओके। सो 1 आर्क मिनट, यहाँ पे जो यूनिट है आपको इस थीटा को डिटरमाइन करने की इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमको पता करना है। तो 1 आर्क मिनट इज 1/16 into पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो यदि इसको सॉल्व करोगे आप, ये फॉर्मूला है, तो इसको आप सॉल्व करोगे 3 × 10⁻⁴ रेडियन, जो जनरली एक नॉर्मल आई की जो एंगुलर रिजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, नॉर्मल रिजोल्यूशन नहीं, एंगुलर रिजोल्यूशन की बात हो रही है ना, कि ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑफ द आई इज 1 आर्क मिनट, एक नॉर्मल आई की जो अप्रोक्सीमेटली जो रिजोल्यूशन होता है देखने का, है ना, एंगुलर रिजोल्यूशन की बात हो रही है, तो वहां 1 आर्क मिनट इज द यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁴ रेडियन, समझ आ रहा है, 3 × 10⁻⁴ रेडियन। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज कर लो मून ले लिया मैंने, अब मून का डायमीटर कुछ अलग होगा, अभी मैं कुछ इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, इसकी वैल्यूज लूंगा और फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस थीटा की वैल्यू क्या आती है उस केस में। हमको यहाँ इस रेंज तक की वैल्यू हम देख सकते हैं, 3 × 10⁻⁴ रेडियन, यदि एंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके आसपास की एंगल जो रिजोल्यूशन होगा उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब थीटा हम निकालेंगे सन के केस के लिए और मून के केस के लिए, तो आप समझ पाएंगे कि हम क्यों उसको देख पाते हैं और कितना छोटा इसलिए क्यों देख पाते हैं, इतना छोटा क्यों देख पाते हैं उसको, उसका समझ में आएगा। इस यूनिट के टर्म्स में निकालेंगे, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट सपोज करिए मून है ना, तो उस केस में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो दैट विल बी वेरी लेस, क्योंकि बहुत दूर है वो, है ना, तो एंगल सबटेंडेड होगा वेरी लेस, उस थीटा की वैल्यू अभी दैट विल बी आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी और इसका जो डायमीटर, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑलराइट। तो थीटा क्योंकि वेरी लेस है इसलिए थीटा इक्वल्स टू d/l, है ना। तो d यदि आपको पता है और इस डिस्टेंस पता है, जैसे मून की डिस्टेंस अर्थ से इतनी है और यदि मून का डायमीटर हमको पता हो तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो मून के केस में जनरली ये ऑर्डर आता है 10⁻⁻² रेडियन, इसको अभी निकाल के बताता हूं मैं, है ना। बोथ वेरी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यदि बहुत आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत पास में है तो, और यदि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, मून, सन, स्टार्स, ये बहुत दूर है, तो उस केस में एंगल जो फॉर्मेशन होता है दैट सबटेंडेड एंगल इज वेरी स्मॉल एट आई, है ना। सो एंगुलर रिजोल्यूशन विल बी पुअर इन दैट केस। जो इस केस में एंगुलर रिजोल्यूशन होता है दैट इज वेरी 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 स्मॉल एंड दैट्स व्हाई वी हैव वेरी पुअर इमेज ऑफ दैट, ठीक है। तो आई विल शो यू दैट हाउ दिस theta value can be calculated if we have to find the angular resolution for the moon and the sun, ठीक है students। Now this is case for the sun and the moon. If we want to calculate this angular resolution for the sun and the moon, let us see. This sun has a diameter of 14 × 10⁵ km and the distance from earth to sun is 1.5 × 10⁸ km approximately. So if you calculate by dividing this d/l, so if you put the value of d here and 1.5 × 10⁸ at denominator, so if you divide it, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 14 डिवाइड बाय 15 × 10⁻², है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसलिए उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। तो यदि इनको यदि हम नेग्लिजिबल माने 14/15, दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। सो इफ वी टेक द ऑर्डर ऑफ इट, सो इट इज हैविंग ऑर्डर ऑफ 10⁻² रेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। और यदि हम केस इसी को कंपैरिजन करते हैं फॉर द केस ऑफ द मून, मून का आप केस देखिए, मून के केस में आपको जो इसका जो डायमीटर दिया है दैट इज 3.48 × 10⁻³ किलोमीटर, एंड अर्थ और मून से जो डिस्टेंस है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। सो इफ वी डिवाइडेड 3.48 × 10⁻³ divided by 3.8 this is so this is 3.48 × 10⁻³ and this is 3.84 × 10⁵। यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.8 × 10⁻²। इतना कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई डिवीजन तो बनता है आपको करते, तो 0.8 × 10⁻² रेडियन। सो इट इज आल्सो हैविंग एन ऑर्डर, है ना, ऑफ 10⁻² रेडियन। दैट्स व्हाई
दैट्स व्हाई यू आर एबल, बिकॉज एक जनरल नॉर्मल आई की जो कैपेसिटी होती है दैट इज 3 into 10 - 4 रेडियन 1 आर्क मिनट, है ना? ये आपको समझ में आया था। एंगुलर रिजोल्यूशन जो एक नॉर्मल आई की होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, एंड विच इज समथिंग नॉट वेरी मच डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वैल्यू से, ठीक है? इसलिए आप उसको उस इमेज को देख पा रहे हो, है ना? आपको इतना रिजोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उसको देख पा रहे हो, क्लियर है? तो इसकी वजह से आपका दैट इज नॉट बहुत अच्छा रिजोल्यूशन नहीं मिलता, फिर भी लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट वेरी मच डिफरेंट, नॉट हैविंग मच डिफरेंस फ्रॉम दिस वैल्यू, क्लियर? तो आप इसको समझ पा रहे हो कि कैसे एंगुलर रिजोल्यूशन निकाला जाता है with the help of this formula, and by using this standard value 3 into 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है, for the normal eye.